नमस्कार दोस्तों। एफआई के वीकली प्रोग्राम टॉक विद एन एक्सपर्ट के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मेरी को होस्ट डॉक्टर द्रव्या जैन भी हमारे साथ हैं। तो आज इस सीजन में मैं उनको सबसे पहले उनका वेलकम करना चाहूंगा और साथ ही मैं आज के इंडस्ट्री एक्सपर्ट सरदार हरभजन सिंह जी का वेलकम करना चाहूंगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू संजीव जी, नमस्कार। दोस्तों, हर हफ्ते हम आपके समक्ष किसी ना किसी इंडस्ट्री एक्सपर्ट को लेकर आते हैं और हमारे जो रिस्पेक्टेड इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी नॉलेज आप लोगों से शेयर करते हैं। तो आज हमारे साथ हरभजन सिंह जी जुड़े हैं, लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले मैं डॉक्टर द्रव्या से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हरभजन सिंह जी की प्रोफाइल हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू मिस्टर अरोड़ा। वेलकम टू द शो मिस्टर सिंह। थैंक यू Mr. Harbhajan Singh is currently with XLRI Delhi NCR as a Chief of Strategy and HR. He has been with Tata Steel for 30 years and thereafter with Honda Motorcycle and Scooter as a whole-time director. He is also associated with CII Northern Region as the Chairman of the Regional Committee on Skill Development and also with Federation of Indian Industry as the President of its Haryana chapter. Mr. Singh is also an independent director on the board of Frick India Limited and director with Railway Children India. Over to you, Mr. Arora. थैंक यू डॉक्टर द्रव्या। हरभजन जी, सबसे पहले आपको मैं बधाई देना चाहता हूं कि सबसे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि हमारे लिए ऑनर की बात है आज आप हमारे साथ जुड़े हैं। और बीइंग अ प्रोफेशन, बीइंग अ पर्सनल लाइफ, जितना मैं आपको क्लोजली जानता हूं, मैं अपने ऑडियंस से शेयर करूंगा कि आप एक बहुत ही बेहतरीन और अच्छे दिल के इंसान हैं, जो कि हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है। तो प्रोग्राम की प्रोफेशनल जो हमने आज सब्जेक्ट चूज किया है इंडस्ट्रियल रिलेशन का, हार्मोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशन का, उसकी शुरुआत करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे ऑडियंस के साथ अपनी जर्नी, लाइफ जर्नी शेयर करें। आपके हर्डल्स, आपके अचीवमेंट्स, प्लीज आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करें। थैंक यू संजीव जी। At the outset, let me thank you, Davya ji, and the entire FII team for giving me this opportunity to be with all of you. So I started as a Mazdoor in Tata Steel, and I was with Tata Steel for 30 years. Thereafter, I was with Honda Motorcycle and Scooters India for almost 15 years. And for last 4 years, I am with XLRI Delhi NCR. So that is it. And I would say that I was fortunate enough to see both sides of the world. I had been a workman, and I also had been the member of the board. So I was fortunate enough to see the things from both the perspectives, and God had been very kind. So वो कहते हैं ना, फर्श से अर्श तक, तो ये आप लोगों का प्यार और मेरे वेल विशर्स की ब्लेसिंग्स थी और ईश्वर की कृपा कि हम इस यात्रा में एक मजदूर से एक मल्टीनेशनल कंपनी के बोर्ड तक पहुंच गए। और वर्तमान में मैं एक दो कंपनियों के साथ जुड़ा हुआ हूं और फुल टाइम वैसे मैं भी XLRI दिल्ली NCR के साथ चीफ ऑफ स्ट्रेटेजी एंड HR के तौर पर कार्यरत हूं। What would I say about the journey? I would say that okay, fine, like my first job was to open the tap hole of the blast furnaces and make the hot metal flow in the ladle. उसके लिए नाली बनाते थे, उसमें से hot metal चलाते थे और ऊपर से slag हटाया करते थे। And the job was के 30 minutes work and 30 minutes rest, so that you lie down in front of a man cooler to regain the energy so that you can be again deployed back on the work. So from there I started. I was just a high school pass out when I started my journey,
Initially, I was a trade apprentice and then I became a Mazdoor with Tata Steel. That time it used to be called Tisco. And for almost 30 years, I was with them in that journey. I had been with several departments from, basically in the iron making area only. And I also was fortunate enough to have the confidence of my co-workers and colleagues and was with Tata Workers Union as its vice president representing 50,000 co-workmen and also was with ILO for a short stint of 2 years in a ILO Danida project of uh, organization and leadership development and had been joint director for Michael John Center for Research and Human Resource Development. But I continued my education and I had a very firm belief that it is education only which can make a big difference in your life. तो वो कहते हैं ना कि शिक्षा ही लोगों को पंख लगाती है और उन्हें उड़ने की क्षमता देती है कि वो एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव तक आसानी से पहुंच सके तो मार्ग सरल नहीं है देखिए चेंजेस ऑफ इनकन्वीनियंस कोई भी ऐसा परिवर्तन जो कि थोड़ा डिस्कम्फर्ट क्रिएट करे और बचपन में और जवानी में तो बचपन तो खेल में ही गुजर जाता है जवानी में आदमी चाहता है कि थोड़ा रिलैक्स रिलैक्स करे यार अब तो माँ बाप की वो अनुशासनात्मक जेल जो होती है उससे कुछ छुटकारा मिल गया है लेकिन वो होता नहीं है तो आप अपने खाली समय में कितने प्रतिबद्ध होकर अपने बारे में सोचते हैं और अपने विकास पर काम करते हैं तो वो एक ऐसी चीज है जो आपको जीवन में कुछ नई ऊंचाइयां छूने में कामयाब बनाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं I would say that professionally it is that family wise I am a very happy married man have completed 44 years of my marital journey just day before yesterday. I have three daughters. All of them are well placed in life, have grandchildren now. But I keep myself fairly busy so that whatever energy is left in me should be put to some productive use. That's all that I could say about myself, sir. थैंक यू हरभजन जी सबसे पहले तो पूरी एफआईआई फैमिली की तरफ से आपको आपकी एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाई Thank you, sir. जी और सर लाइफ में चैलेंजेस तो बहुत आते हैं जिस तरह लेकिन आपने अपनी जर्नी बताई वो हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है एक पुराना शेर मुझे याद आ गया आपकी इस लाइन से आपकी जर्नी देखकर कि अकेला ही चला था गालिब मैं चलता गया और कारवां बनता गया तो आज आपने जो एक अकेले शुरुआत की थी और आज एक आप मल्टीनेशनल कंपनी के हेड हैं और कई कंपनीज के बीइंग अ डायरेक्टर आप ऑपरेट कर रहे हैं और कई ऑर्गेनाइजेशंस में आप अपनी सर्विसेज प्रदान कर रहे हैं तो एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है और इसमें जो आपका जो पैशन है वो आप जो पैशनेट होकर काम करते हैं वो हमने बहुत ही क्लोजली देखा है आपको तो इसी के साथ हम आज का क्वेश्चन आंसर्स का दौर शुरू करते हैं सर जी सर देखिए आज एक एंटरप्रेन्योर जो है अपने लाइफ में कितने चैलेंजेस से गुजरता है बीइंग अ वर्कर भी कितने चैलेंजेस हैं आपने हर चीज को क्लोजली देखा और अगर हम फर्दर बात करें ऑर्गेनाइजेशन की तो एक ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होते हैं वर्कर्स हैं मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं तो आपस में सबका एक तालमेल बैठना एक आपस में एक सिंक होना बहुत ही टफ होता है तो ऐसे में हार्मोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशन का रोल आता है तो सबसे पहले आप हमारे ऑडियंस से शेयर करें कि हार्मोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्चुअल में क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट करनी चाहिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए बीइंग अपर मैनेजमेंट और बीइंग बॉटम लाइन वर्कर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए थोड़ा सा आप प्लीज हमारे ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए देखिए संजीव जी लाइक सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध दैट इज हार्मोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशंस
देखिए, चाहे वो परिवार हो, चाहे समाज या उद्योग, अगर सौहार्दपूर्ण संबंध रहते हैं तभी शांति भी बरकरार रहती है और तभी प्रगति के मार्ग भी प्रशस्त होते हैं, जी। है ना। वो कहते हैं कि जिस घर में कला हो ना, उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता। ये अपनी देसी कहावत है। तो वैसे ही जिस उद्योग में भी अगर कला होगी तो, और संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं होंगे, तो वैसी जगह में उद्योग का प्रगति कर पाना और लाभ अर्जित करना या प्रॉफिट बना पाना संभव नहीं होगा, या वो अपने फुल पोटेंशियल पर ऑपरेट नहीं कर पाएगा। देखिए, संबंध आपसी विश्वास और तालमेल पर बहुत निर्भर करते हैं। सभी पक्षों को, खास करके अगर उद्योग की बात करें तो सभी पक्षों का परस्पर, you say that mutual reciprocity and trust, कि एक दूसरे के ऊपर भरोसा और एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता का होना बड़ा जरूरी है। देखिए, प्रॉफिट कमाना कोई आसान काम नहीं है, उद्योग चलाना कोई आसान काम नहीं है ना। और ये, वैसे तो मैं ये मानता हूं कि जीवन में दो ही काम बहुत मुश्किल है, एक धन कमाना और दूसरा लोगों की स्वीकृति कमाना। जी। ना धन कमाना आसान है, उसके लिए भी बड़ी मेहनत लगती है, और दूसरे लोग आपको स्वीकार करें, आपकी स्वीकृति लोगों में हो, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो सो मैं ये कहना चाहूंगा कि उद्योग में मानव संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और हम उनके साथ व्यवहार कैसा करते हैं, उनकी जरूरतों की देखरेख कैसे करते हैं, वो तो एक पक्ष है। लेकिन उससे ज्यादा ये बात महत्वपूर्ण है कि हमारी मानसिकता उनके प्रति क्या है। डू वी ट्रीट लेबर एज ए कमोडिटी और वी ट्रीट देम एज ह्यूमन बींग्स। अगर हम उनके ऊपर एक मानवीय दृष्टिकोण रखते हैं तो वैसी स्थिति में हमारे और उनके बीच में बनने वाले संबंध एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट या जो अनुबंध रहता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का, उसके दायरे से भी बहुत आगे चले जाते हैं और बहुत प्रगाढ़ हो जाते हैं। जब तक लोग कंपनी को अपनी कंपनी नहीं समझेंगे, अपने काम से उन्हें महत्व का अनुभव नहीं होगा या संतुष्टि नहीं मिलेगी, और उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि आवश्यकता पड़ने पर या मुसीबत आने पर ये ऑर्गेनाइजेशन या ये संस्थान हमारे पीछे खड़ा रहेगा, तब तक उनसे वफादारी, लॉयल्टी और एक पैशनेट कंट्रीब्यूशन की उम्मीद करना बेकार है। अगर हमारी ये आकांक्षा है कि लोग बड़े पैशनेट होकर अपने काम को करें, तो हमें उस माहौल का सृजन करना होगा। माहौल बड़ा टॉक्सिक होगा कि लोगों का काम की जगह पर आने का मन ही नहीं कर रहा है, और मजबूरी है उनकी कि नहीं जाएंगे और समय पर पंच नहीं करेंगे तो तनख्वाह नहीं मिलेगी। तो वैसी स्थिति में वो, आप उनके 2 पंच और 1 लंच पर ही उनका कार्यकाल बीत जाएगा, और आपको वो अपने मन से जो दे सकते हैं ना। देखिए, एक बार आदमी का मन किसी काम में लग जाए ना, तो उसे अपने तन का भी होश नहीं रहता। जी। फिर ना उसे थकान का अनुभव होता है, ना उसे ये पता चलता है कि ये काम करते करते कितना समय निकल गया। उसके अंदर एक अलग ही जुनून सा सवार रहता है अपने काम के प्रति, और वैसी स्थिति में उसे थकान का भी अनुभव नहीं होता है। लेकिन अगर मन ही नहीं है वहां पे, मन में भावना ही ऐसी है कि अब मजबूरी है, आना पड़ रहा है,
तो वैसे माहौल में अगर आदमी काम करता है तो फिर वो बस जस्ट वर्क टू रूल या न्यूनतम काम करके कैसे सरवाइव कर सकता है उसके ऊपर ही उसका ध्यान रहता है। तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन देखिए एमएसएमई के प्रति तो बड़ा मतलब चैलेंजिंग माहौल है, क्योंकि संख्या कम है, संसाधन कम है। बड़ी कंपनियां जो है ओईएम्स वगैरह, उनके पास क्या है कि बैंडविड्थ ज्यादा है, कुशन है, प्रॉफिट का भी कुशन है, रिजल्ट्स का भी कुशन है। तो वो दूरंदेशी से काम लेते हुए कई बार ना इन्वेस्ट करते हैं अपने ह्यूमन मैन पावर पे और ह्यूमन रिसोर्सेस पे। अब आजकल हम लोग रिसोर्सेस कहने लग गए हैं, शुरू में पर्सनल मैनेजमेंट कहा जाता था, हाँ जी, फिर उसके बाद बोला गया ह्यूमन रिलेशंस, अब ह्यूमन रिसोर्सेस पे आ गए हैं, है ना। तो जो लेकिन चाहे लेवल कुछ भी रहे, लेकिन अगर नियोक्ता के मन में भावना अच्छी रहेगी लोगों के प्रति ना, तो वैसी स्थिति में उद्योग में माहौल भी अच्छा रहेगा और लोग अपनी पूरी तन मन धन से अपना योगदान देने में कंफर्टेबल रहेंगे। जी। तो आजकल तो कई चीजें आपको पता है, पॉलिटिकल एंगल्स है, बाहरी हस्तक्षेप हो जाते हैं, कई बार कंपटीशन है लोगों में। कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसी जगह जाते हैं जहां पहले कभी उद्योग ही नहीं था, रूरल एरिया से आसपास के माहौल से लोगों को हम लोग इकट्ठा करते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट देते हैं, लेकिन वो अभी भी रूरल माइंडसेट से बाहर ही नहीं आए होते हैं। तो झगड़ा भी करेंगे तो सोचते हैं चलो बैठो 5 जन पंचायती करके निपटा लो, लेकिन उद्योग तो नियम कानूनों से चलता है, तो वो चीजें संभव नहीं हो पाती। बट बिल्कुल मूल बात, अगर औद्योगिक संबंध ठीक रखने हैं तो जो आपके फ्रंट लाइन सुपरवाइजर्स है ना, फ्रंट लाइन सुपरवाइजर्स और वर्कर के तालमेल कभी खराब नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि यही दो है घटक। काम कराने वाला पहला हाथ सुपरवाइजर है, काम करने वाला तो वर्कमैन है ही है। तो उस वो अगर उनकी आपसी ट्यूनिंग ठीक रहती है, सुपरवाइजर दबाव में रहता है, मैनेजमेंट का दबाव है, प्रोडक्शन बढ़ाओ, ये करो। कई बार एक आदमी ये 4 घंटे ही काम कर रहा है, इसको और 10 जगह इन्वॉल्व करो, तो प्रॉब्लम्स फिर धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। जी। दैट इज व्हाट आई, बट वी नीड टू रिस्पेक्ट पीपल। अगर हम लोगों की इज्जत करेंगे, उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे, तो कंपेंसेशन वगैरह सेकेंडरी हो जाती है। लेकिन क्या है कि आप बहुत पैसे दे लीजिए, लेकिन अगर आपका व्यवहार ठीक नहीं है तो वहां पे औद्योगिक माहौल बिगड़ना ही बिगड़ना है। जैसे अपने परिवार में ही आप बच्चे को बहुत पैसे दे दीजिए, हम्म। पर रोज उसके दोस्तों के सामने उसकी बेइज्जती कीजिए, तो वो दिए हुए पैसे और ये दी हुई सहूलतें उसके मन में कोई असर नहीं डालती। उसे ये जी। याद रहता है कि मेरी बेइज्जती की गई। तो वैसे ही नेवर गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर समथिंग टू ट्रिगर ए डिस्प्यूट। बिल्कुल हरभजन जी, ये आपने बिल्कुल बहुत ये प्रैक्टिकल बात है, क्योंकि प्यार का जमाना है। प्यार से तो हम कुछ भी काम करवा सकते हैं, लेकिन किसी को पॉइंट करके पॉसिबल नहीं। जी जी। सर आपने बताया इंडस्ट्रियल रिलेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है, एक बार जरा उसके बारे में भी बताएं। एंड आपने सर एज अ बॉटम लाइन वर्कर और एक एज अ टॉप लेवल मैनेजमेंट नाउ, यू सीन इट फ्रॉम बोथ दी साइड्स, तो किन किन चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए या क्या चीजों के ऊपर फोकस रहना चाहिए, एक बार उसके बारे में भी बताइए प्लीज। देखिए, एक तो कंसिस्टेंसी ऑफ बिहेवियर बहुत जरूरी है। जब हम शॉप फ्लोर पे डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं ना, तो हमारी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। पक्षपात एक ऐसी चीज है जिसके चलते बहुत ज्यादा समस्याएं प्लांट लेवल पे उभरती रहती हैं। होता क्या है कि अब हैं तो हम लोग सभी ह्यूमन बीइंग्स ही ना एट द एंड ऑफ द डे। तो जो हमें थोड़ा ज्यादा भा जाता है काम की वजह से, व्यवहार की जगह से, कई बार उसके प्रति हम थोड़े नरम हो जाते हैं।
और जो लोग थोड़े अक्खड़ रहते हैं या बात नहीं सुनते हैं या हमारे कहे अनुसार नहीं चलते हैं 100%, उनके प्रति हम बहुत सख्त हो जाते हैं। तो हमें थोड़ा इस बीच में एक तो बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत है। दूसरी चीज, जो डिसिप्लिनरी प्रोसेस है ना, वो सबके लिए सेम है। कोई भी गलती करे तो यही सजा है, और सबके लिए यही सजा है, और सबको यही मिसकंडक्ट पर सबको यही प्रोसेस से गुजरना होगा और यही पनिशमेंट से गुजरना होगा। अगर ये कंसिस्टेंसी रहती है ना, तब दिक्कत नहीं होती है। लेकिन दिक्कत कई बार कहां से शुरू हो जाती है कि अगर अपना कोई आदमी फंस गया है तो उसको हम जाने देते हैं, छोड़ देते हैं, नरम पड़ जाते हैं, और जिससे हमारा स्वभाव मेल नहीं खाता या जिससे हम नाराज हैं, उसने अगर उसी तरह की गलती की होती है तो उस गलती के प्रति हम उसको एक मौका और दे देते हैं। अच्छा चलो एक मौका और देते हैं, सुधर जाओ। तो अगर ये मौका देने वाला चलन है तो फिर सबको मौका देना चाहिए, और नहीं है तो किसी को नहीं देना चाहिए। बट देयर हैज टू बी कंसिस्टेंसी इन फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ डिसिप्लिन, नंबर वन। नंबर टू, कि देखिए, यू हैव टू बी ह्यूमेन विद पीपल, है ना। हर दिन एक जैसा मूड नहीं रहता आदमी का, हर दिन एक जैसे नो माहौल से आदमी निकल के नहीं आया होता है। एक दिन अचानक कोई बहुत गर्म घटना से आया है, किसी दिन नॉर्मल है, तो थोड़ा सा ना स्पेस रखना चाहिए। क्योंकि हमें तो इन लोगों के साथ कई साल जीना है ना, जिनसे काम लेना है उनके साथ भी कई साल जीना है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बड़ी बन करके बहुत बड़ी समस्याएं क्रिएट करती हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन बनती है ना, मान लीजिए कोई कंपनी खड़ी हो रही है, तो जब कंपनी बनने लगती है तो उसके साथ साथ उसके संस्कार और कल्चर भी बनने लगते हैं। और वो संस्कार जो होते हैं वो अनरिटन कोड है, सबको मालूम है, पर लिखित में नहीं है। तो आप कैसे संस्कार या एनवायरनमेंट डेवलप होने देते हैं राइट फ्रॉम डे वन, वो बहुत मायने रखता है। अगर आप शुरू से ही लोगों को, शुरू में तो बिल्कुल ढीला छोड़ा हुआ है, जो करना है करो, कोई किसी के ऊपर पाबंदी नहीं है, कुछ नहीं है, और फिर काम का थोड़ा थोड़ा प्रेशर बढ़ना लग गया तो आपने पूरा प्रेशर डालना शुरू कर दिया। अब जिनको आदत पड़ी हुई होती है कि हम तो 1 1.5 घंटा काम करते थे जी, आराम से चले जाते थे, अब उनको वो काम, वही काम बहुत भारी लगने लगता है। कई बार मैं देखता था लोग कहते थे हमें तो जी पहले भी हम यही थे, इतना हमारे ऊपर प्रेशर नहीं था, अब हमें 5 घंटे 6 घंटे काम करना पड़ता है। वो इस पर्सपेक्टिव से नहीं देखते कि आपको एम्प्लॉयमेंट दे दिया गया है, उस समय काम नहीं था तो आप कम काम कर रहे थे। अब अगर मान लीजिए आपके पास ऑर्डर नहीं है, आप एमएसएमई है, आपके पास ऑर्डर नहीं है, तो आप केवल वर्कमैन को इंगेज करने के लिए तो 8 घंटे मशीन नहीं चलाएंगे ना। जी। तो वैसी स्थिति में लोग बैठ जाते हैं, आराम कर लेते हैं। लेकिन आदमी को किसी ना किसी काम में लगाए रखना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो फिर एक बार अगर वो कल्चर डेवलप हो गया, वैसे भी अपने देश में ये कल्चर ही है कि काम की जगह में कैसे थोड़ा बहुत समय बचा लिया जाए और आराम कर लिया जाए। कि 8 घंटे का काम अगर हम 4 घंटे में निपटा सके तो वो 4 घंटे हमने एक तरह से अर्जित कर लिए हैं। अब हमें कोई इस 4 घंटे में कुछ भी करने के लिए ना कहे, क्योंकि हमने तो आपका कोटा पूरा कर दिया। तो इसके चलते क्या है ना, हमारे यहाँ लेबर सस्ती लगती है, पर प्रोडक्टिविटी कम होने की वजह से कई बार वो महंगी पड़ जाती है। ठीक है। तो दूसरा एक और एंगल होता है कि जब हम लोग कलेक्टिव बार्गेनिंग में जाते हैं तो कई बार दबाव में या कुछ जरूरतों को नजर में रखते हुए हम ऐसी बढ़ोतरियां कर देते हैं जो हमें आगे चल करके खलने लगती हैं, और हम उस पैकेजेस को संभाल पाने में कामयाब नहीं रह पाते। कि आपने जी तनख्वाह प्रेशर पड़ गया जी, हमने तो स्ट्राइक कर देनी है, और उस समय आपके पास कोई ऐसा ऑर्डर है जो आप नहीं करेंगे पूरा, तो आपको भारी नुकसान हो जाएगा।
तो उस समय हम करते क्या है कि दबाव में आके कई बार नाजायज मांगे भी मान लेते हैं, लेकिन उसका जो प्रभाव होता है वो फिर बड़ा ही दूरगामी हो जाता है। और इंडस्ट्री उसको, या एमएसएमई खास करके, मैं ये जो बात कर रहा हूँ अभी एमएसएमई के पर्सपेक्टिव से कर रहा हूँ। ओईएम तो क्या करते हैं कि चलो जी हमने तो अपना कुछ प्राइस बढ़ा दिया। अगर मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करूं तो उन्होंने कार में जी 10,000 रुपया बढ़ा देना है, वो आपकी सारी लेबर कॉस्ट की जो बढ़ोतरी है वो कवर कर जानी है। कोई टू व्हीलर बना रहा है तो उसने टू व्हीलर में 2-4 हजार रुपया बढ़ा देना है, तो जितनी बढ़ोतरी दी है वो सब कवर कर जानी है। पर एमएसएमई कहाँ जाए? आपकी तो जो पार्ट आप प्रोवाइड कर रहे हैं, वेंडर कंपनियां, उनको तो 1 रुपए की भी बढ़ोतरी मिलने वाली है नहीं, वहां पे उल्टा और रिडक्शन होगी, कि उल्टा और स्क्वीज किया जाएगा, जो हकीकत है, मतलब प्रैक्टिकली आई एम टॉकिंग। तो वैसी स्थिति में अगर हमने कोई केवल एक आध ऑर्डर को ध्यान में रखकर बहुत बढ़ोतरियां दे दी होंगी, तो आगे हम उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो हमें इन सब चीजों को ध्यान में रख के एक बैलेंस से चलना चाहिए कि हमारे पास जो वर्कफोर्स है हमें इसको 20 साल 30 साल अपने साथ रखना है और चलाना है, और ओवर भी नहीं करना है। बीच में बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। इम्प्लीमेंटेशन का ऐसा है कि वो तो सिस्टम्स बने हुए हैं, हम हर साल लोगों को इंक्रीमेंट देते हैं, इंक्रीजेस देते हैं। हाँ, और जो परफॉर्मेंस इंसेंटिव अगर कहीं लगा हुआ है तो वो इंसेंटिव्स देते हैं कि भाई प्रोडक्शन ज्यादा होने लग गई है तो आपको परफॉर्मेंस इंसेंटिव, कुछ प्रोडक्शन बोनस मिल जाएगा, एनुअल बोनसेस देते हैं। वो सब चीजें अपने ये होती हैं। लेकिन एक चीज है कि जब आईआर की बात आती है ना, इंडस्ट्रियल रिलेशंस की, तो हम रिएक्टिव होते हैं। जब तक कंपनी स्मूथली चल रही है ना, टॉप मैनेजमेंट को फुर्सत भी नहीं है बैठ करके कि एक बार जरा ठंडे दिमाग से सोच ले कि जो ये माहौल चल रहा है, कल को हो सकता है कि ये माहौल बिल्कुल ही विस्फोटक सा बन करके उभरे, और इसके लिए पहले से हमें कुछ काम कर लेने चाहिए। कोई कोई लोअर लेवल पे एक आदमी की जिम्मेवारी लगाई होती है, उसी के ऊपर डंडा चलाते रहते हैं, और बहुत ज्यादा गुस्से में आते हैं तो उस बेचारे को शहीद कर देते हैं। हाँ, और रिएक्टिव रहता है बिहेवियर। स्ट्राइक हो गया, कुछ हो गया, तो बस सीधा सारी मैनेजमेंट बैठ जाएगी इसको कैसे तोड़ना है। ये मानसिकता है कि दबाना कैसे है। तो ये इस तरह की मानसिकता के साथ लंबे समय तक कंपनियों का चलना संभव नहीं होता। वी नीड टू एक्चुअली मूव फ्रॉम रिएक्टिव आईआर टू प्रोएक्टिव आईआर। हमें ये सोचना चाहिए कि समय के साथ लोगों की जरूरतें बदलेंगी, और उन बदली हुई जरूरतों को संभालने के लिए हमें उनको कैसे हैंडल करना है और कितनी उनकी जायज बढ़ोतरियां करनी है, वो और वो हमें करनी चाहिए। लोग काम करने क्यों आते हैं? एक तो पैसा है ना, जरूरत है पैसा, पैसा मिलेगा परिवार का और खुद का भरण पोषण होगा। दूसरा, काम की जगह से हमें संतुष्टि मिलनी चाहिए, वहां हमारी इज्जत होना चाहिए, हमारा आदर होना चाहिए, समाज में हमारा कुछ नाम होना चाहिए कि आदमी जी वहां पे काम कर रहा है, इस कंपनी में है, या कुछ प्रोडक्टिव है। तो हम्म। ये दोनों ही चीजें उसको मिलनी चाहिए। हम उसको बहुत इज्जत दें और उसको इतने की तनख्वाह ना दें कि वो अपना परिवार अच्छे ढंग से चला सके, तो वो भी संबंध ज्यादा नहीं चलने वाले नहीं है। और बहुत ज्यादा उसको पैसे दे दें और उसको बिल्कुल बेइज्जत करके रखें, तो वो भी संबंध बहुत ज्यादा चलने वाले नहीं है। तो फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन पर्सपेक्टिव वी नीड टू क्रिएट ए बैलेंस बिटवीन द मनी दैट वी गिव एंड हाउ वी ट्रीट पीपल। इन दोनों के बीच एक तालमेल और बैलेंस लेना बहुत जरूरी जी। है। जी। हरभजन जी, ये आपने इंटरनल पर्सपेक्टिव सामने रखा। इंटरनली क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे आपस में तालमेल बैठना चाहिए, कैसे आप आपस में सिंक होना चाहिए, इसके बारे में आपने बताया। लेकिन बिजनेस में इंटरनल के अलावा एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव भी होते हैं कि मार्केट में कुछ क्राइसिस आ गए, कभी काम की प्रॉब्लम, कुछ मार्केट की को लेकर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। ऐसे में मैनेजमेंट का क्या रोल रहना चाहिए और बॉटम लाइन वर्कर्स का क्या रोल रहना चाहिए? दो चीजें हैं संजीव जी। जी। हम लोग ना परिवार में भी क्या करते हैं, वी सेव फॉर ए रेनी डे ना।
कहते हैं ना कि बुरे वक्त के लिए हमने कुछ धन संचय करके रखा हुआ है। जी ऑर्गेनाइजेशंस भी अपने बुरे वक्त का सामना करने के लिए कुछ रिजर्व फंड रखती हैं। वो रिजर्व फंड्स किस लिए रखती हैं कि कल को हमें कुछ नई टेक्नोलॉजी लानी है, पुरानी मशीनरी बदलनी है। लेकिन कई बार जब इस तरह की स्थिति आ जाए कि मान लीजिए कि मैं एक कंपनी चला रहा हूं और मैंने ये पिछले 10 साल में इस कंपनी से काफी अच्छी चली, हमारी कंपनी, हमारे संबंध भी बहुत अच्छे चले, हमने टेक्नोलॉजी के लिए इतना रखा, उसके लिए इतना रखा। अब ऐसा वक्त आ गया है कि हम इसको नहीं सस्टेन कर सकते, तो वर्कर भी बेवकूफ नहीं होता। हम सैलरियां कम भी करते हैं, हम्म, हम स्टैग्नेट भी करते हैं कि अब और बढ़ोतरी नहीं होगी। मैंने कई कंपनियां देखी हैं जहां वर्कर ने आधी आधी तनख्वाह पर साल साल भर काम किया है, और प्रबंधन इतना संवेदनशील और दूरदर्शी था कि उन्हें पता था कि ये बुरा वक्त है, 4 महीने 6 महीने साल का, ये भी कट जाएगा, लेकिन हमने अपने ये लोग नहीं गंवाने हैं। ये सुख में हमारे साथ खड़े रहते, ये दुख में भी हमें इनके साथ खड़े रहना है। और फिर धीरे धीरे सिचुएशन इंप्रूव कर जाती है। तो उस समय अगर हम देखिए, आदमी के पेट को तो भूख लगनी है, जी उनकी जरूरतें रातों रात 100 से 0 तो नहीं हो जाएंगी। जब आदमी के ऊपर तकलीफ का समय आता है तो वो अपनी सुपरफिशियल जरूरतों को कम करता है कि अब हमने तफरीह नहीं करनी, हमने एंटरटेनमेंट नहीं करना, ठीक है। लेकिन ये तो नहीं करेगा ना कि हमने खाना नहीं खाना, वो तो खाएगा ही ना कम से कम। जी तो मैं समझता हूँ कि बुरे वक्त में भी इतना जरूर देना चाहिए वर्कमैन को, जिससे कि उसके मतलब खाने पीने वाली समस्या ना हो और बच्चों की पढ़ाई की समस्या ना हो। बाकी चीजें अगर आप कट भी कर दीजिएगा तो लोग भी समझदार है, उतने बेवकूफ नहीं है। लेकिन इसमें होता क्या है कि कई बार बाहरी तत्व बीच में घुस जाते हैं, जो लोगों को ये गुमराह करते हैं कि अरे ये कुछ नहीं है, ये तुम्हें बेवकूफ बना रही है कंपनी, इनके पास बहुत ऑर्डर है, हम्म, आप घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं और हम इनको दबा करके तुम्हें पैसे दिलाएंगे। तो कई बार लोग बहक जाते हैं तो फिर उसके परिणाम भी भोगते हैं। लेकिन जिस कंपनी में ट्रांसपेरेंसी है और दोनों पक्ष एक दूसरे की स्थिति को अच्छी तरह से समझते हैं और एक दूसरे के सहयोग के लिए खड़े रहते हैं, उनके ऊपर आमतौर पर ये बाहरी तत्वों का बहुत प्रभाव नहीं चलता। जी सर, पिछले कुछ टाइम में लेबर लॉ में क्या चेंजेस आए हैं और उनका क्या इम्पैक्ट है, एक बार वो डिस्कस करते हैं सर। See the major changes which we are looking forward to, कि अभी the entire labor laws have been codified into 4 codes, और ये अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। इनकी इम्प्लीमेंटेशन, अब लेबर लॉज की दिक्कत क्या है कि लेबर लॉज कंकरेंट लिस्ट का मामला है। तो सेंटर हैज मॉडिफाइड द laws and codified them to some extent. How will it impact the overall productivity of the industry is yet to be seen. But कोई बहुत ऐसे चेंजेस नहीं है जिसने कि पुराने तंत्र को बिल्कुल हिला दिया हो, और वैसे कुछ खास चेंजेस नहीं है। बट स्टिल आई थिंक समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि कुछ तो लेबर लॉस को कोई छूने ही नहीं देता था। वो जो 1926 से ट्रेड यूनियन एक्ट बना तो उसी को हम ढो रहे हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 का बना है, तो वही चला जा रहा था। तो नाउ देयर आर सर्टेन चेंजेस व्हिच आर देयर, एंड आई थिंक दे विल बी helping the industry to increase its productivity and easing out the problems of industrial disputes also. मेरे ख्याल से इनका एक बार पूरा पूर्ण तौर पर जब क्रियान्वयन हो जाएगा, then we will have to see कि what is the overall impact. But any change is for the betterment. और ये change भी जो है, कम से कम change तो हुआ, that itself is a big change. I think it is good. It is good that the government is thinking in that direction, and the uh, because labor law एक ऐसी चीज है कि ट्रेड यूनियंस उसको छूने ही नहीं देती थी।
तो किसी तरह से अगर थोड़े बहुत भी चेंजेस इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, तो आई थिंक इट इज लाइक ओपनिंग ए न्यू एरा ऑफ फ्रेश थिंकिंग एंड इट विल हेल्प अस इन द लॉन्ग रन. ठीक, Right. थैंक यू हरभजन जी। आज और क्वेश्चंस तो बहुत हैं, लेकिन आपके साथ बात करते हुए वक्त का पता नहीं लगा। तो अब थैंक यू, थैंक यू. आज हम प्रोग्राम को यहीं वाइंड अप करने की परमिशन चाहेंगे आपसे। और जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ हमारे आप ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहें, आप प्लीज दीजिएगा। मैसेज इज दैट अब पहले वाली बात नहीं है, ये नया युग है और जनरेशन भी नहीं है. और जो ये नई जनरेशन है उसने गुलामी नहीं देखी है, और नई जनरेशन को गुलामी स्वीकार भी नहीं है. ना पेरेंट्स की गुलामी, ना एम्प्लॉयर्स की गुलामी, ना सरकार की गुलामी. सो द एटीट्यूड ऑफ द पेरेंट्स टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन हैव टू चेंज. The attitude of the overall educational system towards the students have to change, and also the attitude of governance towards the society has to change. And in all these changes, the audience which exists today, of which a major percentages of youngsters will benefit in a huge way. And I wish all the best to all the people. And I have great hope from the new generation, which is millennial. And I think that this generation will show us a new face of new India. Thank you. थैंक यू हरभजन जी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। और आज हमने हार्मोनियस रिलेशनशिप की बात की, इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बात की। तो अगर मैं शेयर करूं कि हम सिर्फ रिलेशन की बात करें, तो रिलेशन को और अच्छा बनाने का फॉर्मूला सेम है, चाहे हमारे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। फर्क सिर्फ इतना है कि जितने हम टेक्निकल टर्म्स बढ़ाते जाते हैं, हमारी जिम्मेवारियां उतनी बढ़ती जाती हैं। पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रिलेशन का हमारा मायना अलग है, इंडस्ट्रियल रिलेशन में हमारा मायना अलग है। इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात आती है तो हमारा परिवार भी बड़ा हो जाता है, हम देश के साथ भी जुड़ जाते हैं, तो हमारी जिम्मेवारियां कहीं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो आज हरभजन जी ने हमारे साथ ये सब शेयर किया, और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इस बात को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इसी के साथ ही आज का प्रोग्राम हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ। नमस्कार।